तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपकी खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज की खबरें। ग़िज़ाई इन्फेक्शन के सबब 128 तालिबात रात खाना खाने के बाद बीमार हो गए और दवाखाने में दाखिल कर दिए गए। हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा रेसिडेंशियल स्कूल बराए अक़लियत से अमूमन शिकायत वसूल हो रही हैं कि यहाँ के तलबा को बेहतरीन और सेहतमंद ग़िज़ा फ़राहम नहीं की जा रही है। ये और बात है कि हुकूमत ने इन इदारों के लिए बेहतरीन अशिया ग़िज़ाई अजनास और बजट मुख्तस किया है और हस्ब ज़रूरत इदारों को भी जारी भी करती है। इसके बावजूद मकामी स्कूल इंतज़ामिया पर तवज्जो नहीं देता। चंद मकामात से तो ये भी इतलात वसूल होती हैं कि ग़िज़ाई अशिया में चूहे घूमते फिरते नज़र आते हैं और ग़िज़ाई अशिया मायार नहीं है। ये वाक़या लड़कियों के रेजिडेंशियल स्कूल का है। कहा जाता है कि इन तालिबात को दोपहर में चिकन का खाना पेश किया गया, बाकी बचा इसका शोरबा भी इन्हें दिया गया। बादशाह रात की खाने के लिए तैयार किए गए बैगन के सालन में इस शोरबे को मिला दिया गया और ये भी तालिबात को फ्राहम किया गया, जिसके नतीजे में 128 तालिबात रात के खाने के बाद बीमार हो गए। स्कूल के मुंतज़मीन ने पीर की सुबह मकामी तिब्बी अमले को तलब किया ताकि इन तालिबात का इलाज किया जा सके, जिन्हें रात देर गए पेट में दर्द की शिकायत थी। आखिरकार इन्हें दवाखाने में शरीक किया गया। ఇన్ఫెక్షన్ జరగడం వల్ల నేను ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి టిల్ ఈవినింగ్ వరకు ఫుడ్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసారు, కానీ వాళ్ళు పరిధి దాటిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ ఇప్పుడు మాకు పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి మీ పిల్లలకు మోషన్ జరుగుతుంది, పెయిన్స్ వస్తుంది, అబ్డామినల్ పెయిన్ వస్తుందండి మాకు కాల్ చేసి ఇమ్మీడియట్లీ రెస్పాండ్ చేస్తే మేము ఇమ్మీడియట్లీ ఇక్కడికి వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు ఈ టైం ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి రెస్పాండ్ చేయకుండా, ఫాదర్స్ రెస్పాండ్ చేయకుండా, హాస్పిటల్ వాళ్ళకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూ పిల్లలకు 2 ఇంజక్షన్లు క్యాన్లు పెట్టుకుంటూ ఇబ్బంది చేస్తే ఏమైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అయితే హూ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్? ఎప్పుడు జరిగింది ఇది నిన్న ఇన్ఫెక్షన్ లెవెల్ స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళకు మోషన్స్. నిన్న జరిగితే మార్నింగ్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసారు. వాళ్ళ పరిధిలో వరకు ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళ చేతిలో కానప్పుడు ఇక్కడ ఏరియా హాస్పిటల్ ఉంది, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ఉంది, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళకి వచ్చి చెప్పొచ్చు కదా, చేపించవచ్చు కదా. ఈవినింగ్ టైంలో ఎవరు ఉంటారు? ఏ డాక్టర్ ఉంటాడు? కన్సర్న్ ఉంటాడా? కన్సర్న్ ఫిజిషియన్ ఉంటాడు? కన్సర్న్ డాక్టర్ ఉంటాడా? ఆ పరిధి వాళ్ళకి తెలియదా? కన్సర్న్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ డిఎంఓ డబ్ల్యూ ఏం చేస్తుంది? ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తుంది? जस्टिस अदिल भोयान ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह राजभवन पर गवर्नर तमिल सौंदरराजन ने नए चीफ जस्टिस को हलफ दिलाया। इस तकरीब में रियासती चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी शिरकत की। गवर्नर और वज़ीर आला ने नए चीफ जस्टिस तेलंगाना जस्टिस भोयान को मुबारकबाद भी पेश की। इत्तलात हैं कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान गवर्नर और रियासती चीफ मिनिस्टर के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं और मुतज़ाद बयानात जारी किए गए हैं। इन खबरों के दरमियान चीफ मिनिस्टर एक तवील वक्फे के बाद राजभवन में दाखिल हुए हैं। इख्तलाफात के बावजूद तकरीब हलिफ बर्दारी के मौके पर शे नशीन पर गवर्नर, वज़ीर आला के अलावा मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, तेलंगाना के वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। Good morning. I seek the permission of the Honorable Governor
to commence the proceedings. Yes, permit. I request the Registrar General of High Court of the State of Telangana to read out the warrant of appointment issued under the hand and seal of the Honorable President of India. With the permission of Honorable the Governor, I now read out the warrant issued by the Honorable President of India dated 18th June 2022. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 217 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Sri Justice Ujjal Bhuyan, Judge of the Telangana High Court, to be the Chief Justice of the Telangana High Court with effect from the date he assumed charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 18th day of June in the year 2022, 28 Jyesta 1944 Seka in the 73rd year of the Republic of India. Signed, Ramnath Kovind, President of India. I request the Honorable Governor to hand over the warrant of appointment to the Honorable Chief Justice Designate. I request the Honorable Governor to administer the oath to the Honorable Chief Justice Designate. I, Justice Ujjal Bhuyan, having been appointed Chief Justice of High Court for the State of Telangana, Chief Justice of the High Court for the State of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Do I get now? Congratulations, sir. Thank you. Really, we are very fortunate Thank you. to have you, to DJ you, and very great performance. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I seek the permission of the Honorable Governor to conclude the proceedings. Permitted. I request all of you to rise for national anthem. I request all the guests and dignitaries to join us
for the high tea. Our staff will escort to the Batkama lawns where the high tea is arranged. Thank you. तिरुपति की अदालत में तेलुगु फिल्मों के हीरो मोहन बाबू ने कहा कि इनका रास्ता अलग है। वाईएसआरसीपी में वो नहीं हैं बल्कि बीजेपी के आदमी हैं। मोहन बाबू के ख़ानदान की न सिर्फ फिल्मों के ज़रिए बल्कि सियासी तौर पर पहचाना जाता है। वैसे ये सीनियर हीरो मोहन बाबू एमपी भी थे। वो किसी वक्त तेलुगु देशम में सरगर्म अमल थे। गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्होंने वाईएसआरसीपी को शिकस्त दी थी। चंद्रा बाबू पर भी सख्त तनकीद करते थे और उन्होंने चंद्रा बाबू को शिकस्त देने के लिए वाईएसआरसीपी की हिमायत की थी। मोहन बाबू के तबसरे से इन लोगों को एक झटका लगा जो ये समझते हैं कि वो हमारे आदमी हैं। इस पर मोहन बाबू ने कॉन्फ्रेंस में खुद को बीजेपी का कारकुन करार देते हुए पानी फेर दिया है। దారం తగులుకుంటుంది కాళ్ళకి కొంచెం నా తగులుకుంటా కొంచెం కొంచెం సైడ్ ఇవ్వండి సైడ్ ఇవ్వండి సైడ్ ఇవ్వండి చెప్పండి సార్ కేసు మీరు అంటే మోహన్ బాబు ఇద్దరు విష్ణు మనోజ్ కూడా చెప్పండి సైడ్ సైడ్ ప్లీజ్ చదివించాను సైడ్ రమ్మంటాను బా సార్ ఏం సార్ సార్ వాయిస్ సార్ ఏం సార్ ఏడే పేరు మైక్ ఎక్కువ ఇడే పెట్టేద్దాం అవునా ముందరికి పోనా తీసుకున్నా వచ్చే అలా ఉండకూడదురా
रात को बाथरूम जाने वाली हामिला खातून जब वापस आई तो उसके साथ उसका नामौलूद बच्चा भी मौजूद था। पेट में दर्द के बाद रात को बाथरूम जाने वाली खातून ने बाथरूम में ही बच्चे को जन्म दिया है। कहा जाता है कि इस खातून को पेट में दर्द महसूस हो रहा था कि जबकि इसके हमल के मुतालिक कोई अलामत महसूस नहीं हुई। ये अजीब वाक़या बरतानिया में रोनुमा हुआ। ये एक यूनिवर्सिटी की 22 साल तालिबा है। साइमन एनर्जी ग्रीन एनर्जी को पायदार हवाबाजी तब्दील करने के इम्कानात पर काम कर रही है। सारी दुनिया 2050 ईस्वी तक सिफर आलूदगी चाहती है। इस सिलसिले में एक सेमिनार से मुखातिब करते हुए साइमन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मारिया फिराउनो ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार को तिजारती बनाना अहम काम है। अब हम सब अपने सार्फिन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने तमाम ममालिक पर भी जोर दिया कि डिकार्बनाइजेशन के मुश्तरका मकसद की जानिब बढ़ने के लिए अच्छी पोजीशन बनाए। फिराउनो ने कहा कि हर एक का अपना किरदार होना चाहिए। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कोई मुल्क पीछे ना रहे। एहलकार ने मज़ीद कहा कि न तो काबिल तजदीद तवानाई और न ही उसके आसपास का बुनियादी ढांचा महंगा हो। जनूबी कोरिया के एक आला अहदेदार ने कहा कि शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियारों के जरिए जनूबी कोरिया को निशाना बनाना चाहता है। खबरें अब तफसील से। जनूबी कोरिया के एक आला अहदेदार ने कहा कि शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम के जरिए जनूबी कोरिया को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने रूस और चीन पर जोर दिया कि वह शुमाली कोरिया को वसी पैमाने पर मुतवक्किल जौहरी तजुर्बात न करने के लिए कायल करें। जनूबी कोरिया के यूनिफिकेशन की तफसीरें इस वक्त सामने आया जब शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन ने गुज़िश्ता हफ्ता एक फौजी इजलास में अपने जौहरी अज़ाइम पर दोबारा जोर दिया और फ्रंट लाइन आर्मी यूनिटों के लिए गैर मुतय्यना नए ऑपरेशन फ़राइज़ की मंजूरी दी। माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के साथ अपनी कशीदा सरहद के साथ मैदान में जंग में जौहरी हथियारों को तैनात करने का मंसूबा बना सकता है। तजियाकारों का कहना है कि शुमाली कोरिया छोटे जौहरी वार हट तैयार कर चुका है और इसका तजुर्बा भी कर सकता है जो कम फासले तक मार करने की सलाहियत के हामिल मिसाइल पर नस्ब हों या दीगर नए हथियारों पर नस्ब करते हैं।